اور یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس سے التجا اور درخواست کرتے ہیں، اے خداوند ہم بھی تیرے گناہگار بنتے ہیں، اے خداوند ہمیں بھی برکت دے، ہم پر بھی اپنی روح کا مسا ظاہر کر، اے خداوند ہم تجھے پکارتے ہیں، ہم تجھے پکارتے ہیں اپنی شکر گزاریوں سے، ہم تجھے پکارتے ہیں خداوند کلام کے ذریعے سے، اے خداوند ہم تجھے پکارتے ہیں اپنے ہونٹوں کے نذرانے سے، اے خداوند سن اور اسے قبول کر، آج کے کلام ہماری زندگیوں کے لیے اے خداوند 100 گنا پھل لے کے آئے تاکہ آج کے کلام سے ہماری زندگی بدل جائیں۔ ہاللیلویہ۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں پاسٹر جی کو اور وائیں اور خدا کا کلام جو بھی خدا نے آج ان کو دیا وہ ہم سب میں شیئر کریں اور تاکہ اس کے وسیلے سے ہمارے خاندان برکت پائیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا میں آپ کو سلام۔ ہاللیلویہ جی ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ایک بار پھر جتنی سنیاں ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہوئی ہیں آپ سب کو مسیح میں سلامتی آپ سب کی ہو۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں جتنے بھی عزیز شامل ہو چکے ہیں اور جتنے ہمارے ساتھ فیس بک پہ بھی ہیں، ہم سب کو مسیح میں سلام عرض کرتے ہیں۔ شالوم ایوری ون، خدا ہم سب کے ساتھ ہو، مسیح کی سلامتی ہو۔ تو اے عزیزو، آج ہم خدا کے زندہ کلام خدا کے بندہ پاسٹر سریہ سیمول سے سنتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں میں خدا کا بہت بار کلام پکڑیں تاکہ آپ خود کلام پڑھیں اور برکت کا باعث بنیں۔ آمین۔ تو میں ویلکم کرتی ہوں پاسٹر جی پاسٹر سریہ سیمول کو کہ آئیں خدا کے کلام کو سب کے ساتھ شیئر کریں۔ جی پاسٹر جی ویلکم۔ جی پریز دی لارڈ۔ جے مسیح کی تمام سننے والے بہن بھائیوں کو جو اس وقت میرے ساتھ فیس بک پر ہیں اور میرے ساتھ یوٹیوب پر ہیں اور اسکائپ پر میرے ساتھ سب موجود ہیں، میں ان کو مسیح میں سلام کرتا ہوں اور خداوند پربھو یسوع کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جس نے پھر سے مجھے تندرستی صحت دی۔ یہ پچھلے دن کافی سخت بیمار رہنے کی وجہ سے بڑی تکلیف بھی ہوئی اور بہت سارے بہن بھائیوں نے میرے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ کی دعاؤں کا ثمر یا آپ کی دعاؤں کا جواب آج میں آپ کے سامنے ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ دلیری کے ساتھ آج ہم خدا ان کا کلام بھی سنائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیں ہم بائبل مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہم خداوند کا کلام کو بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا مضمون ہے میرے عزیز بہن اور بھائیوں، بڑا اچھا مضمون ہے، بڑی خوشی ہوگی آپ لوگوں کو لیے کیونکہ سارے ہی لوگ وہ ہر شخص جو ہر فرد و بشر ہے وہ ضرور چاہتا ہے اور وہ ہے دولت مند ہونا۔ یہ سب کی خواہش ہے اور یہ سب کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، ہر کوئی شخص جو ہے وہ دولت مند ہونا چاہتا ہے۔ اور آج ہم ایسے ہی ٹرپ بتائیں گے، ایسے ہی کوئی فارمولے بتائیں گے تاکہ آپ جو ہے نا دولت مند ہو جائیں۔ تو ذرا بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیتیں میرے ساتھ رضیہ پڑھے گی۔ پہلی 8 آیت جی پڑھیے رضیہ۔ جی ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 8 آیات میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ دیکھیں جی، یہ کہانی بڑی خوبصورت
बाइबल मुकद्दस अमाल की किताब के अंदर आप सब ने पढ़ी होगी, बहुत दफ़ा इस पे बहुत अच्छे अच्छे कमांड्स सुने होंगे, बहुत अच्छे अच्छे खुदा के खादमों से बहुत सा कलाम सुना होगा। और आज जो खुदा ने मुझे भी दिया है, मैं भी आप सबके सामने इसको थोड़ा सा बयान करना चाहते हूँ कि ये देखिए, ये खुदा के दो शागिर्द हैं, और यूहन्ना और पतरस, जिनकी बहुत जोड़ी साथ साथ थी, और इसके बाद में पतरस और पालूस भी इनके साथ, इनकी भी जोड़ी बहुत रही है। और ये अक्सर जो है ना हैकल के अंदर दुआ करने के लिए जाते थे। और अब यहाँ आपने ये सारी कहानी तो सुन ली है कि जब ये दोनों दुआ करने के लिए गए, और वहां एक शख्स है जो जन्म क्या है, अपाज है, यानी लंगड़ा है, जन्म चाहिए है। तो इसका मतलब है अब वहां उसकी उम्र का टाइम तो नहीं किया गया कि कितनी उम्र उसकी हो गई थी, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ आ रहा है कि आदमी था। तो इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है 30 साल, 35 साल या 40 साल का हो। तो जरा मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये 30, 35 या 40 साल जिस शख्स ने कौन सी जिंदगी गुजारी? मजदूरी की जिंदगी गुजारी। और ये मजदूरी की जिंदगी गुजार रहा था, और हैकल के दरवाजे पर इसके अजीजों कार, माँ बाप जो कोई भी थे, वो उसको छोड़ के चले जाते थे, और वो सारा दिन क्या करता था? भीख मांगा करता था। अब ये देखे कि कितना दुखी और मुसीबत ज्यादा है कि जिंदगी की खुशियां, जिंदगी की नेमतें और लुत्फ से इसने नहीं उठाया था। जब वो जो एक बच्चा मां के पेट ही से अपाज पैदा हुआ है, तो उसने जिंदगी की खुशियां या जिंदगी की नेमतें तो कुछ नहीं एंजॉय की। ना वो भाग दौड़, ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, बल्कि वो महताज है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, जरा यहां देखें कि खुदा के खदाम दोनों हैकल के अंदर गए, और बाइबल मुकद्दस यहां ये फरमाती है कि उसकी, उन दोनों की उस पर क्या पड़ी? नजर पड़ी। अच्छा, इसका मतलब यह है कि उसी वक्त ये उनकी नजर पड़ी। मेरे दोस्तों, से पहले भी ये हैकल के अंदर जाते थे, दुआ किया करते थे, कई दफा, हो सकता है कितनी दफा इस शख्स को देखा, लेकिन आज इस शख्स की निजात थी, और आज इस शख्स का टाइम था। आज खुदा इसको छूना चाहता था, और आज खुदा इसको क्या करना था? शिफा देना चाहता था। इसलिए आज इसका ये टाइम मुकर्रर था कि ये शख्स जो मां के पेट से, मां के बातन से 40, हो सकता है 30 साल या 40 साल या 20 साल या 25 साल से मजदूर है, वो यीशु नासरी के नाम में क्या करे? शिफा हासिल कर सके। तो मेरे दोस्तों, जब उसने इनको देखा तो उसने सोचा कि आज हो सकता है मुझे बहुत सारे पैसे इनके वसीले से मिल जाएंगे। ये दो आदमी हैं, और आज अच्छा हो सकता है कि मुझे ये बहुत सारा माल और मता दे के चले जाएं, मुझे बहुत सारी धन और दौलत देकर चले जाएं। यानी वो जिसकी उसकी तवक्को थी कि वो दोनों से भीख मांगता था, हो सकता है उस पर उस वक्त के लोग तो 1 पाई छोड़ के जाते थे, 2 पाई या 5 पैसे या 10 पैसे, या उस वक्त तो जो उस वक्त की करेंसी थी वो बहुत ही ज्यादा, यानी उस वक्त की करेंसी, अब आप देखें कि एक सिक्के की बहुत ज्यादा क्या होती थी? कीमत होती थी। तो छोटे से छोटी भी इनको अगर ये दिया जाता था तो इसका गुजरोकात हुआ जाता था। हो सकता है इसके बुजुर्ग माँ बाप भी हो, और उनका भी उन्हीं पैसों के वसीले से क्या होता था? गुजरोकात हो जाता था। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब पतरस ने इस पर क्या की? निगाह की, कि ये उसके दिल के अंदर आया, रहम और तरस भर गया कि ये जन्म का लाचार है, ये जन्म से इस बीमारी के अंदर, और यहां क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। और जो लफ्ज उन्होंने बोले मेरे दोस्तों, वो बड़े गौरे तलब हैं। आज हम उन्हीं लफ्जों पर गौर व खौस करेंगे, और वो लफ्ज थे कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं। इसका मतलब है कि वो सिक्के, क्योंकि उस वक्त चांदी के सिक्के हुआ करते थे या सोने के सिक्के हुआ करते थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, उस वक्त के दिनार की उसकी तवक्को थी कि शायद मुझे कोई दिनार मिल जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब इन्होंने कहा ना सोना है हमारे पास और ना ही क्या हमारे पास चांदी है, लेकिन हम तुम्हें यीशु नासरी के नाम में हुक्म देते हैं, उठ और चल फिर। यहां हम आज ये बात को गौरे तलब करते हैं कि धन
दौलत, उन्होंने ये लफ्ज क्यों उसको बोले, ये इसकी एक खास पॉइंट है, एक खास वजह है, क्योंकि उसकी आंखें तो लगी हुई थी दौलत की तरफ। आज पूरी दुनिया की दौलत कि आंखें किसकी तरफ लगी हैं, दौलत हासिल करने के लिए। जो सड़कों पर भीख मांगते हैं वो भी क्या करना चाहते हैं, पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, वो भी भीख के वसीले से पैसा इकट्ठा करने। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी। एक वीडियो जो अमेरिका के अंदर एक औरत थी जो कुबड़ी बनकर मांग रही थी और बहुत पैसा इकट्ठे। एक दफा मीडिया उसके पीछे लग गया और उन्होंने देखा तो कैसे पैसे मांगकर एक शॉपिंग हॉल में बाद में जाती है, वहां से शॉपिंग करती है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है। उन्होंने उसको बाद में एक्सप्लोड कर दिया और दुनिया को दिखाया, टीवी पर दिखाया। यानी उसकी हवस क्या थी, पेट भरने की नहीं थी, बल्कि वो कोई अपाज भी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन झूठ बोलकर। और ऐसी हजारों वीडियो आप इस वक्त यूट्यूब पर दूसरी जगहों के जराए के जरिए से देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब करेंसी नोट चेंज हुए थे, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब हलचल मच गई थी। वो जिसको हम पक्षीवास कहते हैं, ये झोंपड़ियों के अंदर रहने वाले वो लोग जो मांगने वाले थे, मेरे दोस्त, वो मुसीबत के अंदर पड़ गए। वो इतनी इतनी दौलत उनको चेंज करनी पड़ी, वो तो परेशान हो गए। लोगों की मिन्नतें तरला करते थे, हमारे पैसे चेंज कर दो, न जाने कैसे कर करा के उन्होंने अपने पैसे, क्योंकि उनको खाली पेट भरने के लिए नहीं था, उनको दौलत की हवस होती थी। अब रोज दिहाड़ी उनको देखे मांगते होते हैं। और ऐसा ही पिछले दिनों जब वाजपेयी की हुकूमत के अंदर भी ऐसा ही हुआ, जब नोट चेंज करने की बारी आई तो बहुत सारे ऐसे भीख मांगने वालों को हलचल पड़ गई, वो मुसीबत में पड़ गए। क्योंकि आज पूरी दुनिया की आंखें किसकी तरफ लगी हुई हैं, दौलत की तरफ लगी हुई हैं। दुनिया की हवस है, दौलत को इकट्ठा करना चाहती है। वो कहते हैं किसी ना किसी तरीके से हमें दौलत क्या हो जाए, नसीब हो जाए, हमें मिल जाए। भीख मांग के, चोरी करके, डाके मार के, कत्लो गारत करके आज पूरी मुल्क के मुल्क आज लोग पर्सनली तौर पर, बिजनेसमैन सारे के सारों की एक ही हवस है कि हम दौलतमंद हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा दौलत कमा लें। और यही हवस इस शख्स के अंदर थी। इसलिए उसने उनको ये नहीं कहा कि मुझे शिफा दो, बल्कि उन्होंने कहा कि ना तो हमारे पास चांदी है, और ये बात सच और हकीकत है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये वो खुदा के खादम थे, ये वो खुदा के खादम थे जिन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी और ना ही अपनी दौलत। मैं जब आज ये खुदा के कलाम की स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि कहीं भी मुझे और ना ही किसी खुदा के खादम ने आज तक ये कलाम सुनाया होगा कि पतरस बहुत ज्यादा अमीर आदमी था। पतरस ने पीछे करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद चोरी। पालूस बड़ा अमीर आदमी था, उसने बड़ी करोड़ों अरबों की जायदाद पीछे छोड़ी और अपने घरानों के लिए दौलत इकट्ठी की। ना ही तमोथियस जो हमारे एशिया के अंदर आया, और ना ही यूहन्ना आरव, उसने कोई दौलत का किस्सा उसके अपने पीछे छोड़ा, और ना ही फिलिपस ने छोड़ा, और ना ही दूसरे याकूब ने छोड़ा, बल्कि ये सारी की सारी जिंदगी इन्होंने किसके नाम कर दी थी, यीशु के नाम कर दी थी। उन्होंने अपनी धन, अपनी दौलत, अपना पैसा सब कुछ किसके ऊपर निछावर कर दिया था, यीशु मसीह पर निछावर कर दिया था, कलीसिया पर निछावर कर दिया था, और लोगों पर निछावर कर दिया था। खिदमत दिन और रात, इनकी कोई हिस्ट्री के अंदर जायदाद नहीं मिलती। अगर मिलती है तो वो मैं आपको बताता हूं कि वो खूबसूरत चर्च जो ये बना के छोड़ के गए हैं, वही सब कुछ मिलते हैं। वो कलीसिया जो आज भी जिनका पूरी दुनिया के अंदर नाम है, वो क्या करके गए थे, छोड़ के गए थे। हिंदुस्तान के अंदर चले जाएं, पाकिस्तान के अंदर टेक्सला के अंदर चले जाएं, अथोमा के हाथ के चर्च आज भी है, आज भी उसकी निशानियां मौजूद है। हिंदुस्तान के अंदर चले जाएं, आज भी मशहूर है। और अगर आप रोम के अंदर चले जाएं, अगर आप इटली रोम के अंदर या इटली के दूसरे शहरों के अंदर, आज भी आपको पतरस के हाथ के बनाए हुए वो चर्च, और वो अगर इसराइल के अंदर, मैं पिछले दिनों एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बड़ी दिल गिर हो के देख रहा था, बड़े दुख के साथ देख रहा था कि वो शख्स ये कह रहा था, ये देखे ये वो चर्च है जो इब्तदाई चर्च है जिसका पासबान
खुदा का खादम याकूब था। और ये देखो इस चर्च की हालत इतनी हालते जार है, ये टूट फूट गया। और ये अर्ली चर्च है जिसका वो इंचार्ज था। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, उन्होंने कोई दौलत, आज के खुदा के खदाम, आज खुदा के लोग इतने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, इतनी दान और दौलत इकट्ठी की हुई है, ओ इतने इतने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं। मैं नहीं जानता वो कहां से आ रही है, कैसे आ रही है। मैं तो पिछले करीबन नहीं तो 20 साल के अंदर स्विट्जरलैंड के भी अंदर है। मेरे तो ना तो कोई इतने बड़े बैंक बैलेंस हैं, ना कोई पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जायदादें, ना प्रॉपर्टी है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, मुझे समझ नहीं आती क्योंकि हम आज के खादम या आज के लोगों की हवस एक ही तरफ है, उनकी निगाह सिर्फ एक ही तरफ है। कलीसियाओं किससे भी क्या कर ले, ज्यादा से ज्यादा चंदा इकट्ठा कर ले, कलीसियाओं से भी ज्यादा से ज्यादा पैसा। इंसान को दौलत ने इतना बेहिस कर दिया हुआ है कि लोगों ने सच्ची तालीम को छुपाना शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर लाखों ऐसे चर्च हैं, बड़े बड़े खूबसूरत चर्च हैं, बड़ी बड़ी आलीशान चर्च है, बड़ी दुनिया और बड़े बड़ी उनकी कांग्रीगेशन है, बड़े बड़े उनकी अपना मेंबर है, लाखों की तादाद के अंदर। लेकिन आज तक जो इतने इतने बड़े चर्च है, वो किसी शख्स को जो उनके चर्च के अंदर दुखी आता है, मुसीबत ज्यादा आता है, परेशानी के अंदर आता है, बीमारी के अंदर आता है, वो उसको नहीं करते कि हम तुझे सोना और चांदी नहीं दे सकते और तू यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, यही एक वजह थी क्योंकि उस वक्त की कलीसिया जो बनाई गई थी, वो अपनी सारी जायदादें लाकर कहां रखते थे? रसूलों के कदमों के अंदर रखते थे। और रसूल उनको क्या करते थे? दयानतदारी के साथ इस्तेमाल करते थे, खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते थे। इसलिए आज के खदाम ये नहीं कहते कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं। मुझे बहुत सारे खुदा के खादमों की अपना क्या रिपोर्टें मिली, बहुत सारी लोगों की अपना वीडियो मैसेज लोगों ने भरे कि वो जो कहते हैं जी दुआ करने के, गुर्दों की दुआ करने के लिए इतने पैसे लोगे, फलाने दुआ करने के लिए इतने पैसे। मैं बहुत हैरान था। कुछ झूठ भी है, मैं ये सच बात करता हूँ, बहुत सारा झूठ भी है, बहुत सारा उनके खिलाफ प्रोपोगंडा भी है। लोग वो ये कहते हैं कि हमारे इस काम के लिए जो ये हम प्रोग्राम चला रहे हैं, मैं ये नहीं कहता उनको दिया क्योंकि ये जरूरी है। मेरे दोस्तों, जो इतना बड़ा उनका सेटअप लगा हुआ है, जो इतना बड़ा वो उनका सिस्टम चल रहा है, ये टीवी चल रहे हैं, बड़े बड़े चर्च जा रहे हैं, उनका लाखों के हिसाब से उनका खर्चा भी है, इतनी उनकी मुलाजम है। मैं ये नहीं कहता कि उनको देने नहीं चाहिए, उनको देने चाहिए, बल्कि हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के घर में जरूर देना चाहिए। लाजम और मुलाजम है, ये जरूरी है, देना चाहिए, वरना ये चर्च कैसे चलेंगे? ये खुदा के इतने बड़े खुदा के खादम जो पूरी दुनिया के अंदर जाकर अंजील की मुनादी कर रहे हैं, वो कैसे ये सफर करेंगे? सब कुछ करेंगे, लेकिन कहना मैं यही चाहता हूं कि दौलत के लिए नहीं, बल्कि इस्मान की अंजील की खुशखबरी के लिए हमें ये दौलत चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसा कि लूका की अंजील के अंदर एक कहानी है, उसके 18वें बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 24 आयत तक रजिया पढ़ दे जरा। जी, लूका की अंजील उसका 18 बाब और 18वीं आयत से 24 है कि 25? चलो 24-25 तक। जी, खुदाम के कलाम में इस तरह लिखा है, फिर किसी सरदार ने उससे यह सवाल किया, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़िना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने माँ बाप की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़पन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो गमगीन हुआ क्योंकि बहुत दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से
निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आमीन। जी सुन लीजिए, अब देखें वो शरीयत को क्या करता था, मानता था। यहां ये लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि ठीक है तू मुझे उस्ताद, नेक उस्ताद बोलता है, लेकिन तू अगर जिंदगी को हासिल करना चाहता है तो शरीयत पर क्या कर, अमल कर। यानी खुदा के 10 हुक्मों के बारे में उसको इशारा किया। तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि उसने कहा मैं इन 10 हुक्मों को क्या करता हूं, मानता हूं। इसका मतलब यह है कि वो इन 10 हुक्मों को क्या करता था, मानता था। वो झूठा नहीं था, वो फरेबी नहीं था, वो डाकू नहीं था, वो अपने हमसाए की चीज का लालची भी नहीं था, वो अपनी हमसाए की बीवी के ऊपर भी उसका दिल फिदा नहीं था, वो खुदा को भी मानता था, अपने हदिये जात भी देता था। 10 हुक्म उसने उंगलियों पर रटे हुए थे, बचपन से वो इनको मान रहा था। लेकिन ऐसी क्या बात है, इसका मतलब यह है कि ये शरीयत के लिखे हुए हकाम जो वो मान रहा था, ये सब कुछ करने के बावजूद भी आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम बहुत सा चंदा चर्चों में देते हैं, हम बहुत सारे नेक काम करते हैं, हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, फिर भी वो अपनी दौलत से इतना प्यार करते हैं, खुदा से ज्यादा अपनी दौलत से प्यार करते हैं। क्यों? यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि दौलतमंद का आसमान की बादशाहत के में दाखिल होना नामुमकिन है। और दूसरी जगह एक और लूका ही की किताब के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तू 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ उसने दौलतमंद को 2 मालिकों का खादम बताया है। इसका मतलब यह है कि दौलत हमें क्या कर लेती है, गुलाम बना लेती है। हो तो अमीर, पैसे वाला, धन वाला, लेकिन देखे उसने कितने लाखों नौकर चौकर रखे हुए हैं, लेकिन खुद अपने आप को हम लोग दौलत का गुलाम बना देते हैं, दौलत का नौकर बना देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, यही एक वजह थी कि यीशु मसीह ने कहा था कि दौलतमंद आसमान की बादशाहत का वारिस नहीं बन सकता। चाहे वो शरीयत पर अमल करे, चाहे वो चर्च जाए, चाहे वो हदिये दे, चाहे वो गरीबों को खिलाए, कुछ भी करे, लेकिन अगर वो दौलत से प्यार करता है, खुदा से ज्यादा दौलत को प्रेफर देता है, खुदा से ज्यादा दौलत की इज्जत करता है और उसकी खुशी के अंदर रहता है, उसके अंदर मग्न रहता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, यही एक वजह थी। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि दौलतमंद आसमान की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये दौलत आखिर देने वाला भी तो खुदा ही है ना। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, इस्तिशना की किताब और उसका 8वां बाब, और फिर दाऊद नबी ने ये कहता है, इज्जत और दौलत कहां से आती है? खुदा की तरफ से आती है। दाऊद को खुदा ने इज्जत और दौलत दी क्योंकि खुदा की तरफ से दी। इब्राहिम को पढ़ के देख ले, खुदा ने इब्राहिम को इतनी धन दौलत दी थी। मैं जब ये स्टडी कर रहा था तो पैदाइश की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उसके पास सोना चांदी बाकसरत था, भेड़ बकरियां बाकसरत थी, इतनी थी कि वो संभालना मुश्किल हो गया था। मेरे दोस्तों, दौलत खुदावंद की तरफ से है, खुदा देता है। यहां इस्तिशना 8 बाब और उसकी 13वीं और 18वीं आयत है। इतना टाइम नहीं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। वहां यह लिखा है कि मैंने ही तुझे हिकमत अता की ताकि तू क्या कर सके, दौलत हासिल कर सके। इसका मतलब हिकमत कौन देता है? खुदा देता है। अगर खुदा हिकमत ना दे तो ये दौलत हमें मिल नहीं सकती। लेकिन ये दौलत उस वक्त हमें उस वक्त खराब कर देती है जब हम इसकी गुलामी कर लेते हैं और जब हम इसको कमाने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं और इसको जमा करना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा, ताकि इस दौलत से, वो अमीर आदमी की कहानी तो आपने सुनी है जिसने कहा कि आए मेरी जान, खा पी और ऐश कर, तेरे लिए बहुत सी दौलत है, बहुत सालों के लिए तेरे पास क्या है? धन और दौलत जमा है। और उसने कहा मैं अपनी कोठियों को ढाऊंगा, इनको बड़ा करूंगा। और क्योंकि उसके पास इतनी दौलत आ गई थी कि उसका दिमाग घूम गया था। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये एक वजह थी।
दौलत इंसान के दिमाग को क्या कर देती है? खराब कर देती है, ये घमंड पैदा कर देती है। इसीलिए इस्तिशना की किताब के अंदर खुदा ने बनी इस्राएल कौम को कहा था कि जब तुम पेट भर के रोटी खाना और तुम्हारे पास बहुत सारी धन और दौलत हो जाए तो तुम मुझे भूल मत जाना, बल्कि गैर मबूदों की तरफ चल ना पड़ना। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, बाइबल मुकद्दस ने इसीलिए उस अमीर आदमी की जो कहानी मैंने बताई है, उसके पास इतनी धन और दौलत थी और खुदा ने कहा आज रात ही तेरी जान तुझसे क्या कर ली जाएगी? तलब कर ले। इसका मतलब यह है आपकी बड़ी बड़ी दौलत, तिजोरियां भरी हुई दौलत आपको मौत से बचा नहीं सकती, आपको छुटकारा नहीं दे सकती। यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि तुम मेरे साथ क्या करो? जमा करो, मेरे साथ जमा करो और आसमान पर अपनी दौलत को क्या करो? जमा करो। इस खुदा के खादमों ने सारी दौलत, जितनी साल वो रहे, 40 साल, 30 साल, पतरस हो, यूहन्ना हो, लूका हो, याकूब हो, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दौलत नहीं बल्कि उन्होंने बहुत ढेर दौलत इकट्ठी की, लेकिन जमीन पर नहीं, आसमान पर। क्योंकि यीशु ने उनको कहा था अपने लिए जमीन पर खजाना जमा ना करो, बल्कि कहाँ? आसमान पर जमा करो। मेरे अजीज बहन भाई, जरा गौर से सुनिए। जो दौलत के पुजारी, असल में वजह क्या था इसकी, एक और मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ। दौलत जब इंसान के पास आ जाती है ना, तो उसको चैन से बैठने नहीं देती। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, पाकिस्तान के अंदर हो या दुनिया के अंदर हो, अमेरिका हो या दुनिया के दूसरे ममालिकों के अंदर, ये जिनके पास दौलत आ जाती है वो चैन से उनको बैठने नहीं देती। वो कभी उसको छेड़, वो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं, पॉलिटिक्स के साथ लोगों को खरीदते हैं, बेचैन हो रहते हैं, क्योंकि दौलत उनको सोने नहीं देती, बेचैन करती है। दुनिया पर राज करना चाहते हैं, दुनिया को मगलूब करना चाहते हैं, दौलत उनको तंग करती है, दौलत उनको सुकून से रहने नहीं देती। इसलिए मेरे दोस्तों, हिजकिय्याह नबी की कहानी को तो आपने सुना होगा। दूसरा तवारीख और उसकी 32 और उसकी 27 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा ने इतनी दौलत हिजकिय्याह नबी को दी थी, इतनी शान और शौकत हिजकिय्याह नबी को दी थी, बेतहाशा दौलत से उसको क्या किया था? माला माल किया था। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब वो बीमार हो गया, जब वो उसको खुदा ने दिखाया, खुदा के खादम ने आकर कहा, नबी ने आकर कहा कि तू अपने घर का क्या कर ले? बंदोबस्त कर ले, क्योंकि अब तेरी जान क्या है, तुझ में बाकी ना रहेगी, तू मर जाएगा। वो रोया, चलाया और दीवार की तरफ अपना क्या कर लिया? मुंह कर लिया और रोना शुरू हो गया। खुदा से इल्तिजा की, खुदा मुझे माफ कर दे, हाय खुदा मुझे माफ कर दे, यकूब के खुदा मुझे माफ कर दे, इसहाक के खुदा मुझे माफ कर दे। खुदा के दिल के अंदर रहम और उसके लिए तरस आया और खुदा ने उसको क्या कर दिया? माफ कर दिया। और अभी नबी थोड़ी ही दूर गया था तो खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ, जा उसको बोल कि मैंने तुझे जिंदगी के 15 साल और दे दिए। और उसकी खातिर खुदा ने सूरज का साया क्या कर दिया था? 15 साल के लिए पीछे कर दिया था, वक्त चेंज कर दिया, आसमान पर इतना बड़ा काम कर दिया, दुनिया की तारीख चेंज कर दी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, लेकिन कलाम के अंदर लिखा है कि बाद में वो घमंड के अंदर आ गया, उसकी दौलत ने उसका दूसरा तवारीख और उसका 32 और उसकी 24 और 25 आयत और उसकी 26 आयत तक आप पढ़ ले, आप बाइबल घर के अंदर बाद में इसको पढ़ ले, इस कहानी को। उसके दिल के अंदर क्या आ गया था? घमंड आ गया था और वो खुदा का एहसानमंद नहीं रहा था। मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर मैंने देखा है बहुत सारे लोग शिफा पाने के लिए आते हैं, खुदा के घर के अंदर आते हैं, खुदा के खादमों के पास आते हैं, और जब उनको शिफा मिल जाती है तो वो उनको छोड़कर चले जाते हैं। वो स्काइप पर भी नहीं आते हैं बाद में, और दूसरे जराए से भी वो कांटेक्ट ही नहीं करते, सिर्फ वो इसलिए आते हैं ताकि अपने जिस्म की क्या कर ले? शिफा हासिल कर ले। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों,
क्योंकि दौलत इंसान को चैन से बैठने नहीं देती, ये खुदा की बादशाह के अंदर दाखिल होने नहीं देती। इसीलिए खुदा के खदामों ने क्या किया था, इसी को तर्क कर दिया था, इसको छोड़कर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सारी जिंदगी यीशु मसीह की खिदमत में, उसकी मुनादी में, और इतने मौजज़े उनके वसीले से होते थे क्योंकि लोगों को वो सोना और चांदी की तालीम नहीं देते थे, बल्कि वो कहते थे सोना और चांदी हमारे पास नहीं, लेकिन हम तुझे यीशु नासरी के नाम में। मेरे दोस्तों, मेरे इस बहन और भाइयों, आए हम यीशु की मुनादी पूरी दुनिया के अंदर करें, उसके मौजज़ात की मुनादी दुनिया के अंदर करें, ना कि इस दौलत को हासिल करने की, दौलत के पीछे। क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी मुल्क पाकिस्तान को दौलत के लिए छोड़ा था, कोई यहाँ और किसी मकसद के लिए नहीं था, क्योंकि मेरा घराना जो था वो एक मतुसात घराना था, एक मिडल ख़ानदान से था, मेरा बाप एक किसान था। तो मेरे दोस्तों, वो हमारा इतना गुज़र औक़ात नहीं हो सकता था। लेकिन मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, ये बात आज मैं मीडिया पर सबके सामने हो रही है। मैं सऊदी अरब के अंदर गया तो मैं बेशक वहाँ भी काम करने के लिए था, पैसा कमाने, लेकिन वहाँ मैंने, मेरी बीवी मेरे इस वक्त मेरे साथ है, वहाँ भी दिन और रात खुदावंद की क्या की, खिदमत की। वहां भी मैंने पैसा कमाने के अंदर दिन और रात नहीं की लगाया। मैं आपको एक वाकया बताता हूं मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब मैं सऊदी अरब के अंदर था तो उस वक्त जब मैं बहुत बड़ी खुदा ने मुझे रोया दिखाई थी, बहुत बड़ी कलीसिया वहां खुदावंद ने तामीर करवाई, मेरे हाथों से खुदा ने मुझे वो रोया दी, ख्वाब दिखाई कि मैं तेरे वसीले से यहाँ एक बहुत बड़ी कलीसिया कायम करूंगा। और खुदा ने वो कलीसिया कायम की। जब कलीसिया बड़ी स्टैब्लिश होगी, चल रही थी, तो मेरे दोस्तों काफी साल हो चले थे मैं सऊदी अरब के अंदर रहते हुए। मैं पाकिस्तान आया और शादी करके फिर वापस चले गया। तो उस वक्त मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी को भी सऊदी अरब के अंदर लेके आ जाऊं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, एक दिन मैं अपने जॉब से आया, उस वक्त मेरे पास बहुत अच्छा जॉब था एक कंपनी के अंदर, एज ए मैं सुपरवाइजर, तकरीबन नहीं तो 150 लोग जो थे मेरे अंडर के अंदर काम करते थे। तो मेरे दिल के अंदर मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि जो सऊदी गवर्नमेंट मुझे इजी से वीज़ा दे दे और मैं अपनी बीवी को उस मुल्क के अंदर लेके आ जाऊँ। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना प्राइवेट काम भी, क्योंकि मेरी ड्यूटी जो है थी 4-5 बजे ख़त्म हो जाती थी। अगर ओवर टाइम होता था तो ज़्यादा टाइम और लगा लेता था, लेकिन जब ओवर टाइम नहीं होता था तो जल्दी छुट्टी हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना साइड बिजनेस शुरू कर दूं, रेडीमेड गारमेंट्स बनाना शुरू कर दूं। ये प्लान मेरे अंदर आया और मैंने क्या किया, वहां मशीनें खरीदनी शुरू कर दी। मशीन खरीदा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों से कांटेक्ट करने शुरू कर दिए, मार्केट करनी शुरू कर दी और सब कुछ इकट्ठा कर लिया। एक दिन मैं दुआ कर रहा था अपने कमरे के अंदर, क्योंकि कलीसिया बहुत बड़ी थी और हफ्ते के अंदर सिर्फ एक ही छुट्टी वहाँ होती थी। और शाम को जो मेरे टाइम होता था, जो कलीसिया को विजिट करने का होता था, घरों के अंदर दुआ करने का होता था, बीमारों के या किसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, आप जानते हैं कि कलीसिया के अंदर क्या क्या लोगों की मुश्किलें प्रॉब्लम होती हैं, उनको हल करने के लिए या उनके घरों में दुआ करने के लिए, विजिट करने के लिए कलीसिया के लोगों को टाइम में सारा स्पेंड करता था। अपना यही टाइम सारा मैं उनको देता था। तो खुदा के पाकरू ने मुझे कहा कि सैमुअल, तू काम से आकर दूसरा काम करेगा तो सारा टाइम तो अपने बिजनेस और कारोबार पर ही गुजार देगा, तो तू खुदा की कलीसिया को क्या टाइम देगा। मेरे दोस्तों, उस वक्त मैंने कहा, नहीं खुदावंद, मैं अव्वल दर्जा तुझे दूंगा। मैंने वो मशीनें बेच दी, सब कुछ खत्म कर दिया और फिर से कलीसिया की खिदमत करना शुरू हो गया और खुदा ने मेरा सब कुछ काम कर दिया। उस वक्त मेरे से 8,000 सऊदी रियाल मांगते थे रजिया के वीज़े के लिए। मेरे दोस्तों, मैंने एक पाई भी नहीं दिया और फ्री ऑफ कास्ट मुझे इसका वीज़ा भी मिल गया, टिकट के पैसे भी खुदा ने मुहैया कर दिए, सब कुछ खुदा ने मुहैया कर दिया और खुदा ने बहुत धन दे। और उसके बाद में अब मैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर पिछले 20 साल से ये खूबसूरत मुल्क खुदा ने मुझे दिया। अगर मैं उस वक्त इन लालच के अंदर
पढ़ देता, खुदा की खिदमत छोड़ देता और यहाँ आकर अभी मैं चाहे ज़्यादा की है या थोड़ी की है, लेकिन यीशु को इज़्ज़त और जलाल देते रहे। मेरे दोस्तों, मेरे सिस बहनों और भाइयों, दौलत आपको आसमान की बादशाहत की वारिस नहीं बनाएगी। वही खिदमत जो आप यीशु के लिए करते हैं, आसमान पर अपने लिए ख़जाना। मैं ये नहीं कहता कि काम ना करो या बिजनेस ना करो, करो, लेकिन अपना टाइम खुदावंद को भी दे। आए अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। आए जलाल से बड़े पुरफजल खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जो कुछ तूने मुझे दिया मैंने तेरे बेटे बेटियों तक पहुँचा दिया। इस कलाम के वसीले से इनको बड़ी बरकत है। ये कलाम जो कोई जहाँ कहीं भी कुछ सुने, उसकी ज़िंदगी के अंदर अजीब इनकलाब आए, उसकी ज़िंदगी आए खुदा रहमतों और बरकतों से भर जाए, उसके ख्यालात चेंज हो जाए और आए खुदा तेरी खिदमत में जुट जाए, तेरे काम के अंदर लग जाए। खुदावंद इन तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को बड़ी बरकत दे। मैं तुझे ही इज्जत और जलाल देता हूँ, तेरे जिंदा कादर मुद्रिक यीशु नाम में मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे खूबसूरत मैसेज के लिए, जो हमारी रूह और जिसम के लिए का बायस बनी। खुदा आपको बहुत एक दफे बरकत दे। जो है और पास्टर जी इस वक्त अब आपने कलाम सुना दिया है।